A very good morning to all students. Hello, students, how are you? I hope you all are fine. Now, students, today in this video, I will discuss about our chapter number 21 of grammar book. The title of this chapter is adverbs. Now, students, look at here some sentences given in your textbook. First of all, give your attention. The children played merrily. He came to my house yesterday. The coin is very rare. Now, here in these three sentences, all three highlighted words are adverbs merrily, yesterday, and very. Now, look at here some information. The words in bolds are adverbs. We know that an adverb is used to modify a verb, an adjective, or another adverb. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एडवर्ब हम किसको कहते हैं, जो वर्ड वर्ब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशंस देते हैं या मॉडिफाई करते हैं उनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट हियर. दिस टेबल shows us how to use the different kinds of adverbs. Now students, in your grammar textbook this table is given. It's a very important table, and in this table some kinds of adverbs discussed here with the example. So all of you look at here. Now the first kind of adverb is adverb of manner. So what is the use of adverb of manner? Tells us how something is done. Answer the questions how. For example, I fold my clothes neatly. Here the highlighted word is neatly. So neatly is called adverb of manner. ठीक है. यहाँ पे ये क्लोथ्स को कैसे फोल्ड किया है, तो नीटली फोल्ड किया है, तो ये इसकी मैनर दिखाता है, इसलिए उसको एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं. सेकेंड काइंड इज एडवर्ब ऑफ टाइम. टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन्स. आंसर द क्वेश्चंस इज व्हेन. Okay, now example is Tim reached home late yesterday. Here the highlighted word is yesterday. So yesterday is called adverb of time. ठीक है. तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशंस देता है कि व्हेन द एनी एक्शन एट विच पर्टिकुलर टाइम हैपन्स. ठीक है. नाउ द थर्ड काइंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. टेल्स अस वेयर समथिंग हैपन्स. नाउ answer the questions where. If we are asking any questions with the where and the answer came, that mention adverb of place. For example, it is raining outside. Here the highlighted word is outside. So outside is called adverb of place. ठीक है. तो adverb of place जो है वो हमें place के बारे में information देता है. Now next is adverb of frequencies. Tells us how often something occurs. Answer the question is how often. Okay. So if we are asking questions with a how often, whatever the answer will come, it suggests the adverb of frequency. For example, Jane is rarely late. Here the highlighted word is rarely. So rarely is called adverb of frequency. Now the last kind is adverb of degree. Tells us how much or how complete an action is. Answer the question is how much. For example, I'm extremely sorry. So here the highlighted word is extremely. So extremely is called adverb of time. So these are the certain kinds of adverbs. Here total 5 kinds given. All kinds are very important and you have to learn by heart all the 5 kinds of adverb. Now look at here. First exercise number A of your textbook. Underline the adverbs in these sentences and say what kind they are. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटेंसेस दिया है, उस सेंटेंसेस को हमें अच्छी तरह से रीड करना है और उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडवर्ब कौन सा है वो फाइंड आउट करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और नियर बाय द सेंटेंस वी हैव टू राइट द काइंड ऑफ दैट एडवर्ब. Now first is given as an example. Let's go upstairs now. Here the adverb is upstairs. And what is the kind of this adverb? Upstairs. यानी हमें प्लेस के बारे में यहाँ सजेशंस दिया है,
So that's why it is called adverb of place. Number second, the soldiers march steadily down the street. In this sentence, students, you can see steadily is called an adverb. So you have to underline the word steadily, and nearby the sentence you have to write adverb of manner, क्योंकि ये manner के बारे में describe करता है. ठीक है. That's why here written adverb of manner. Number 3, my cousins usually send me a birthday card every year. Here the adverb is usually. So you have to underline the word usually, and the kind of this adverb is adverb of frequencies. ठीक है. Now next sentence. Rasmi dialed the number and the ambulance arrived immediately. Here adverb is immediately, so you have to underline the word immediately, and it is an adverb of time, बिकॉज ये टाइम के बारे में मेंशन करता है, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ टाइम. नंबर 5, वी वेर अलॉटेड अ प्लेस इन द न्यू ऑफिस yesterday. Here yesterday is an adverb and it is called adverb of time. So you have to underline the word yesterday, and nearby the sentence you have to write adverb of time. Number 6, we were happily riding our bicycles along the street. Here happily is called an adverb. So you have to underline the word happily. So it suggests the manner. That's why nearby the sentence you have to write adverb of manner. Riding तो कर रहे हैं bicycle, but किस तरह से कर रहे हैं? Happily. So it suggests, वो हमें manner दिखाता है. ठीक है. That's why here we have to write adverb of manner. Number 7, my mother and I rarely go to the shop beside our house. So here adverb is rarely. So you have to underline the word rarely, and it is an adverb of frequency. So you have to write nearby the sentence adverb of frequencies. Number 8, Sally found an old yellowing envelope underneath the box. Here adverb is underneath, and it suggests about place, particular place. तो हमें पता है कि जो येलोइंग एनवलप है वो कहाँ है? अंडरनीथ द बॉक्स. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. नंबर 9, Paul has recently been offered a promotion. Here adverb is recently and it suggests time. That's why here we have to write adverb of time. Number 10, we are going out for dinner. Here adverb is out, so you have to underline the word out, and it suggests a place. That's why here we have to write adverb of place. Okay. Now look at further information given in your textbook. Adjectives and adverbs. We know that adjectives are used to modify nouns and pronouns. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में दोनों में क्या डिफरेंस है. तो जो एडजेक्टिव्स है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यानी मॉडिफाई करते हैं, एंड एडवर्ब्स आर यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स. और वो जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को. तो दिस आर द डिफरेंस. तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एंड एडवर्ब है वो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है. देयर आर मैनी वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज बोथ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. फादर केम होम अर्ली. एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब केम. ठीक है. यहाँ पे जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है. फादर इज एन अर्ली राइजर. Here it is used in the form of a adjective modifies the noun riser. ठीक है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में अर्ली का यूज़ हुआ है सेकेंड सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है राइजर उसको यहाँ पे मॉडिफाई किया है. ठीक है. तो यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई किया है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई किया है इसलिए वो एडवर्ब है. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज नंबर बी, आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन बोल्ड एज एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स. तो ये एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से सेंटेंसेस रीड करना है और डिसाइड करना है कि जो भी बोल्ड वर्ड दिया है वो एडवर्ब्स है या एडजेक्टिव्स है. ठीक है.
Now first, Anjali is a fast runner. Here fast is used as an adjective. ठीक है, क्योंकि यहाँ रनर है वो है नाउन और यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई किया है, तो जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव. ठीक है. नाउ मिसेस राव लेफ्ट बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट. Here late, the highlighted word here late is used in a form of adverb. ठीक है, because it modify verb. Number 3, we found the math exercises very difficult. So here the highlighted word difficult is used in a form of adjective. Number 4, Sumit hit the ball hard. Here the highlighted word hard is used in a form of adverb. So nearby the sentences, with the help of pencil, students, you have to write adjectives, adverbs like this way, whatever I have written. Number 5, we need a long rope. Here long is used in a form of adjective because it modify the noun rope. ओके, रॉप तो है बट कैसा है? लॉन्ग है, तो इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे. दैट्स वाई यू हैव टू राइट एडजेक्टिव नियर बाय द सेंटेंस. नंबर 6, वी आर गिवन वीकली असाइनमेंट्स. सो हियर वीकली इज ऑल्सो यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बिकॉज इट मॉडिफाई द नाउन असाइनमेंट्स. असाइनमेंट्स तो है बट वो कब देना है? वीकली. सो वीकली इज यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. ओके, I hope students whatever I am explaining just now with you, that you all of you understood it properly. Now look at another information. Formation of adverbs. We add ly to adjectives to form most adverbs of manner. Generally students, जो भी जितने भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर वर्ड्स है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे कि कोई भी एडजेक्टिव वर्ड्स दिया है उसके एंड में हमें ly ऐड करना होता है, तो वो एडजेक्टिव में से एडवर्ब ऑफ मैनर में चेंज हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्विक, तो वहाँ पे क्विक में हमें ly ऐड करने से वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया क्विकली. सेम वे स्वीट, तो उसमें भी हम ly ऐड करेंगे तो स्वीटली हो जाएगा, तो वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है. When the adjective ends in consonant plus y, we change y into I and add ly. ठीक है, अब कोई भी एडजेक्टिव वर्ड में लास्ट वर्ड y है और उसके आगे कॉन्सोनेंट दिया है तो y को हम चेंज कर देंगे और उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे? I लगा देंगे और ly ऐड करने से जो भी एडजेक्टिव्स है उसका एडवर्ब हो जाएगा. जैसे कि वर्ड है हैप्पी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, लास्ट वर्ड है y है और उसके आगे का वर्ड है कॉन्सोनेंट p, तो y की जगह हम I ऐड करेंगे और ly ऐड करेंगे, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? हैप्पीली. सेम वे हैवी है तो हैवी का क्या हो जाएगा? हैवीली. ठीक है. नाउ लुक एट हियर. व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन ई, वी लीव आउट द ई एंड ऐड ly. जैसे कि कोई भी एडजेक्टिव्स में लास्ट में ई दिया है तो हम ई को कट आउट करके क्या लगा देंगे? ly लगा देंगे, तो एडजेक्टिव में से वो एडवर्ब हो जाएगा. जैसे कि सिंपल, SIMPLE, तो यहाँ पे ई है उसको हम कट आउट करके लगा देंगे क्या? ly, तो हो गया सिंपली. सेम वे डबल, तो डबल ई. व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन IC, वी ऐड ALLY. जैसे कि कोई भी एडजेक्टिव्स का लास्ट लेटर है IC, तो उसको हम कट आउट करके ALLY लगा देंगे तो वो हो जाएगा एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल बेसिक, तो बेसिक का जो IC है वो कट कर देंगे, सॉरी कट नहीं करना है, IC है और उसके बाद हमें ALLY ऐड करना है. ठीक है, जैसे कि बेसिक है तो बेसिकली, ड्रास्टिक है तो ड्रास्टिकली. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान में रखना है IC कट नहीं करना है, बट IC के बाद हमें ALLY ऐड करना है. ठीक है. नंबर C, exercise number C, complete these sentences with the adverb forms of the adjectives in the box. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि सभी जो हेल्प बॉक्स दिया है वो सभी एडजेक्टिव्स दिया है, तो
तो सबसे पहले सभी का हमें एडवर्ब करना पड़ेगा। एडजेक्टिव्स में से एडवर्ब में हमें चेंज करना पड़ेगा और एडवर्ब हमें फिलअप्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, विनोद लुक्ड ब्लैंक एट हिज फादर। तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिया है होपफुल, वो एडजेक्टिव है, तो उसका एडवर्ब क्या होगा? होपफुली। ठीक है, हमें ly ऐड करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द वर्ड, सो इट विल चेंज इनटू एडवर्ब। सो होपफुल का यहाँ पे हो जाएगा होपफुली। नंबर सेकंड, ब्लैंक नथिंग वैल्यूएबल वॉज स्टोलन फ्रॉम द हाउस। तो यहाँ पे लकी लिखा है, तो लकी इज एन एडजेक्टिव, तो लकी का एडवर्ब क्या होता है? लकीली। ly हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट लेटर y है और उसके पहले का कॉन्सोनेंट k है, तो वहाँ पे y को हमें कट आउट करके ily लिखना है। दैट्स वाई हियर वी हैव टू राइट लकीली नथिंग वैल्यूएबल वाज स्टोलन फ्रॉम द हाउस। नंबर 3, आंट बेकी is irritated. She is speaking so blank. यहाँ पे हेल्प बॉक्स में एंग्री लिखा है, बट हमें क्या लिखना पड़ेगा? एंग्रीली। y को कट आउट करके ily ऐड करना पड़ेगा, तब वो एडवर्ब हो जाएगा एंग्रीली। नंबर 4, द चिल्ड्रन वेर ब्लैंक एग्जिस्टेड आफ्टर स्पेंडिंग 2 hours ऑन द बीच। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है एब्सोल्यूट, तो लिखना हमें क्या पड़ेगा? एब्सोल्यूटली। ly ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो एडवर्ब में चेंज होगा। सो व्हाट इज आंसर? द चिल्ड्रन वेर एब्सोल्यूटली एग्जिस्टेड आफ्टर स्पेंडिंग 2 hours ऑन द बीच। नंबर 5, द डांसर मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर। यहाँ पे वर्ड है एलिगेंट, बट हमें लिखना क्या पड़ेगा? एलिगेंटली। नंबर 6, व्हाट डिड शी टेल यू ब्लैंक प्लीज रिपीट एवरी वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे स्पेसिफिक का हो जाएगा स्पेसिफिकली। नंबर 7, ही लिसन टू द डिस्कशन ब्लैंक एंड देन पुट फॉरवर्ड हिज आइडियाज़। यहाँ पे लिखा है काम, बट हमें लिखना क्या पड़ेगा? कामली, CALMLY। ठीक है। नंबर 8, द चॉयर सिंग ब्लैंक एट द कॉन्सर्ट। तो यहाँ पे हमें वर्ड लिखना पड़ेगा, मेलोडियस लिखा है बट लिखना पड़ेगा मेलोडियसली। ओके, नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। दिस टेबल shows us where the different kinds of adverbs are usually placed in sentences. Kind of adverbs, position and examples. तो यहाँ पे जितने भी काइंड्स हैं एडवर्ब्स के, उसकी सेंटेंस में कौन सी पोजीशन है, कहाँ पे वो हमें यूज़ करना है, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ये टेबल थ्रू दिया है। फॉर एग्जांपल, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो कभी कभी एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ हम सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के मिडल में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस के एंड में, फॉर एग्जाम्पल, दे रन क्विकली। So you can see here quickly is an adverb of manner that is used at the end of the sentence. Sometimes we used in the middle of the sentence, but if the adverb is not the most important part of the clause or if the object is very long. For example, they quickly ran to the shop to buy some things. तो यहाँ पे quickly है वो middle में भी use किया है। Adverb of time. एडवर्ब ऑफ टाइम हम जनरली एंडिंग में भी ले सकते हैं और बिगिनिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे। तो यहाँ पे टुडे लास्ट में लिया है, बट हम बिगिनिंग में भी ले सकते हैं, जैसे कि टुडे आई विल विजिट द डेंटिस्ट। तो यहाँ पे टुडे है वो बिगिनिंग में लिया है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जनरली एडवर्ब ऑफ प्लेस हम एंड में और मिडल में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विंड रोड आउटसाइड और आउटसाइड द विंड रोड। ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हम बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आई लाई अवेक एट नाइट। सो समटाइम्स यहाँ पे बिगिनिंग में यूज़ किया है। आई यूजुअली वेक अप अर्ली, यहाँ पे मिडल में यूजुअली यूज़ किया है। एंड
वी गो टू द पार्क समटाइम्स, तो यहाँ पे समटाइम्स है वो एंड में भी लिया है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, मिडल और एंड, सेंटेंस के मिडल में और एंड में हम ले सकते हैं, जैसे कि आई एम वेरी एक्साइटेड, तो यहाँ पे वेरी है वो मिडल में लिया है, और आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली, तो यहाँ पे कम्प्लीटली है वो एंड में लिया है। नाउ एक्सरसाइज नंबर डी, insert the adverb in the brackets in the correct position in the sentences, indicate where more than one is possible। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज में हमें कौन सी पोजीशन में जो ब्रैकेट में जो दिया है एडवर्ब वो हमें करेक्ट पोजीशन में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट में दिया है तपन एम वेल बट मिस द वेस्ट पेपर बास्केट इनटू ब्रैकेट एंटायरली, तो यहाँ पे तपन एम वेल बट मिस द वेस्ट पेपर बास्केट एंटायरली, यहाँ पे एंड में लिया है, और दूसरा सेंटेंस भी दिया है वो मिडल में दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही लिमिटेड स्पेस है, इसलिए हम एक ही पोजीशन दिखाएंगे और एक ही सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, हर एक सेंटेंसेस में। सेकेंड, आई कोलिडेड with the old woman going in the opposite direction into bracket nearly. So which way we have to write this sentence? I nearly collided with the old woman going in the opposite direction. Number 3, we will be sending out all the new year greetings cards into bracket tomorrow. ठीक है, तो यहाँ पे टुमारो हम लास्ट पोजीशन में लेंगे, जैसे कि we will be sending out all the new year greetings cards tomorrow. स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड स्पेस दिया है, so you can write it properly with the help of pencil and utilize the space properly. Number 4, our parents are there when we need them into bracket always, तो यहाँ पे हम always का यूज़ मिडल में करेंगे। इस तरह से आपको सेंटेंस लिखना है, our parents are always there when we need them. Number 5, Nilly changed her job into bracket recently, तो यहाँ पे हम beginning में लेंगे, तो किस तरह से लिखना पड़ेगा? Recently Nilly changed her job. Number 6, Mehul comes to work on time these days into bracket seldom, तो यहाँ पे seldom हम middle में लेंगे, जैसे कि Mehul seldom comes to work on time these days. Number 7, I was feeling ill and wanted to see the doctor into bracket immediately, तो यहाँ पे immediately भी हम middle में लेंगे, जैसे कि I was feeling ill and immediately wanted to see the doctor. Number 8, he can do better at school into bracket obviously. So here we can use the word obviously at the middle. So which way we have to write? He can obviously do better at school. Okay. So I hope students, all of you understood whatever I have discussed in this video, and this is last exercise of this chapter. So all these exercise students you have to read properly 2 times, and all the exercise you have to write with the help of pencil in your good handwritings. Okay, thank you. Have a nice day to all of you.